चैतन्य রমতি নারদ হইতে ব্যাস মধ্য কহেন ব্যাস দাস পূর্ণ প্রজ্ঞ পদ্মনাভ গতি নৃহরি মাধব শ্রী অচ্ছুব পরমহংসে শিষ্য বলি অঙ্গীকার করি অক্ষবীর শিষ্য জয় তীর্থ নামে পরিচয় তার দাসে জ্ঞান সিন্ধু তরে বিনয়ানিধি তার দাস বিদ্যানিধি রাজেন্দ্র হইলতা হইতে তাহার কিঙ্কর জয় ধর্ম নামে পরিচয় পরম্পরা জান ভালো মতে জয় ধর্ম দাসে খ্যাতি শ্রী পুরুষ কাম জ্যোতি তাহা হইতে ব্রহ্মণ তীর্থ সুরি ব্যাস তীর্থ তার দাস লক্ষ্মীপতি ব্যাস দাস তাহা হইতে মাধবেন্দ্রপুর আর মাধবেন্দ্রপুর नित्यानंद श्री अद्वैत विश्वर पुरी के धन्य कोरी लेन श्री जगत गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नयन रूपानुगजनेर जीवन विश्वम्बर प्रियंकर शिष्य रूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन तार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर विश्वनाथ यास विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर हरि भजन जार मोद शिवासवान हरिवरा सदा शिव शिवत्व तार द्वैत दास नाम प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानु श्री केशव भक्ति प्रज्ञान गौरी वेदांत वेत्ता मायावाद तमन गौरवाणी प्रचार चार धाम केश प्रिय महाजन बामन नारायण गौरवाणी जाদের प्राण धन এই সব হরিজন তাদের উচ্ছিষ্টে মর কাম অন্তরা গুরু পরম্পরা পরম্পরা গুরু পরম্পরা বৃন্দাবন বাসী যত বৈষ্ণবের গণ প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ নীলাচল বাসী যত মহাপ্রভুর গণ ভূমিতে পড়িয়া বন্ধ সবার চরণ নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত সবার চরণ বন্ধ হইয়ায় অনুরক্ত মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌর দেশে স্থিতি সবার চরণ বন্ধ
করিয়া প্রণতি যে দেশে বইছে গৌরাঙ্গের গমন উর্ধবাহু করি বন্ধ সবার চরণ হইয়াছেন হইলেন প্রভুর যত দাস সবার চরণ বন্ধ দন্তে করি ঘাস ব্রহ্মাণ্ড তারি ধরে জনে জনে এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যে বাসুনে মহাপ্রভুর গণ সব পতিত পাবন তাই লোভে মই পাপি লইনু শরণ বন্দনা করিতে অত শক্তি ধরি তম বুদ্ধি দোষে মুনি দম্ভ মাত্র করি তথাপি মুখের বাক্য মনের উল্লাস দোষ কমি হয় ধমে করণীয় দাস সর্ববাঞ্ছা সিদ্ধি ব্রহ্ম বন্ধ চুকে জগতে দুর্লভ হইয়া প্রেম ধন লুকে মনের বাসনা পূর্ণ চিরাতে হয় দেবকী নন্দন দাস জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ভজ শ্রী কৃষ্ণ প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবসতি গৌরা ভক্ত বৃন্দ কবে শ্রী চৈতন্য মোরে করিবেন দয়া কবে আমি পাইব বৈষ্ণব পদ ছায়া কবে আমি ছাড়িব বিষয় অভিমান কবে বিষ্ণু জনে আমি করিব সম্মান গলবস্ত্র কীর্তাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে দন্তে তৃণ দ্রৌপদী ইব নিষ্কপটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানা ইব দুঃখ গ্রাম সংসার নল হইতে মাগিব বিশ্রাম শুনিয়া আমার বৈষ্ণব ঠাকুর আমার লাগি কৃষ্ণ আবে বিদেন প্রচুর আর বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়া হেন পামর প্রতি হইবেন সদয় নদের বৈষ্ণব চরণে কৃপা করি গঙ্গে জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর নিতাই গো নমনি আমার নিতাই গো নমনি আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল বনি প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইল গৌর দেশে ডুবিল ভক্ত
গণ দীনহীন বাসে দীনহীন পতিত মরণাহি বাছে নার দুর্লভ প্রেম সবাকারি যাছে আপদ করুণা সিন্ধু হটিয়া মহান ঘরে ঘরে ভুলে প্রেম আমি আর গান লোচন বলে জীবানা ভজিল জানিয়া শুনিয়া শুনি আত্মঘাতিল জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় हरि नित्यानंद प्रभु की राधा जी राधा भजने यदि मते नाही बेला कृष्ण भजन तब अकारण गेला आतपरोहित सूरज नाही जाने राधा विरहित माधव नाही मानी केवल उजय सुज्ञानी राधाय नादर करय अभिमानी कबहि नाही करबी साकर संग चित्ते छोटी ज्योति ब्रजरस रंग राधिका दासी शीघ्र लाए तब गोकुल कानू रमा शिव नारद श्रुति नारायणी राधिका पद रज जय उमा रमा सत्यासती चंद्रारूपिणी राधा अवतार सभी ओ हेन राधा परिचर्या जाकर धन भक्ति विनोद कान मागए चरण जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद राधे जय जय माधव जयते राधे जय जय गोकुल तारुणी मंडल मयते गोकुल तारुणी हे राधे जय जय माधव जयते राधे हे दामोदर रति वरदान बेसे हरिणी स्फुट वृंदा विपिन के हरिणी स्फुट वृंदा विपिन हे राधे जय जय माधव जयते राधे हे विषवानुदधि अपससी लेके ललिता सती गुण रमित विशाखे विषवानुदधि हे राधे जय जय माधव जयते राधे हे करुणां कुरुमयि करुणा भरिते कनक सनातन वर्णित चरिते करुणां
हे राधे जय जय माधव जय राधे करुणां गुरुमयि करुणा बलिते सनक सनातन वर्णित चरिते हे राधे जय जय माधव जय राधे जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण कृष्ण देव भगवन्तं वन्दे कृष्ण देव कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे मनमानस मधुकर मर्पय निज पदं पंकजमकरन्दे मनमानस मर्पय निज पदं पंकजमकरन्दे कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे कृष्ण जब भी समाधि सुविधिरो विपස්සति न तव न काग्रमरीचे जब भी समाधि सुविधिरो हर इदमेच्छामि निसम्मत वाच्युत तदपि कृपा अद्भुत वीचे इदमेच्छामि निसम्मत वाच्युत कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे बुद्धिरुदञ्चति यद्यपि माधव न तै मम किल मातृ भक्तिरुदञ्चति हर परमेश्वरता तद्वितवादिकं घट घटन विधात्री परमेश्वरता कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे कृष्णदेव भोक्यम विलोलत आद्य सनातनं फलिताद्भुत अद्भुत रससारम् आद्य सनातनं फलिताद्भुत रससारम् कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे कृष्णदेव निवसतु नित्यमिहमृतनिन्दिनी विन्दन मधुरिमसारं निवसतु कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरन्दे मन मानस मधुकर मर्पय कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे जय राधे जय कृष्ण जय राधे नमामि नन्दनन्दनं 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 नमामि नन्दनन्दनं
नन्दनन्दनं सुचारुवक्त्रमण्डलं सुवर्णरत्नकुण्डलं सुचार्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुदीर्घनेत्रपङ्कजं श्रीकेशिखण्डमूर्धजम् अनन्तकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं सुनासिकाग्रमौक्तिकं सचन्ददन्तमौक्तिकं नवाम्बुदाङ्गचित्कनं नमामि नन्दनन्दनं करेण वेणुरञ्जितं गतिकरीन्द्रगन्धितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनं श्रीभङ्गदेहसुन्दरं नखद्युतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं सुगन्धाङ्गसौरभं पुरोविराजितोत्सुवं सुराश्रीवत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावनसुनागरं विलासानुगवाससं सुरेन्द्रगर्भमोचनं नमामि नन्दनन्दनं व्रजाङ्गनासुनायकं सदा सुखप्रदायकं नन्दनमनोप्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनं नन्दनन्द अष्टकं अशेर्यश्रद्धान्वितं तरेद भवाब्धिदुस्तरं लभेदोङ्घ्रिसुगुणकं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनि ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते सदापरिशुश्रियमं कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरि वितानमाङ्गपस्थिते प्रभालबालपल्लव प्रभा उर्णाङ्घ्रिकोमले वरापय पुरत्करे प्रभूतसं चालये सदा परिशुश्रियमं कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गल असङ्गमङ्गसूत्रं सविभ्रमं सभ्रमं दिगन्तगानपातनं निरन्तरं वशीकृत प्रणीतनन्दनन्दने प्रभाकरीश्रियमं कृपाकटाक्षभाजनम् ललित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुख प्रभा प्रास्तको शारदेन्दु मंडली विचित्र चित्र संचर चोरुषा लोचने कदा कोरी श्रीयम कृपा कटाक्ष भाजन मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्नधन्न कुञ्जराज्यकामवेदितोविदे कदा करिष्यमं कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषभावभावधि क्षीरहारभूषिते प्रभूत संग कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्वने शास्त्रमन्दहास पूर्ण पूर्ण शोक सागरे दापरि सखियमं कृपा कटाक्ष भाजन मृणाल बाल बल्लरी
तरंग रंग दुर्लते नीलोचनावलोकने ललालुलन मिलान मिलमनगमुग्धमसीते कदा करी ससीयमं कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्णमालिकाञ्चितं विलेखकं भूकण्ठगे विसूत्रमण्डलीगुण विरत्नदीप्तिविदिते सलोलनीलकुन्तल प्रसन्नगुच्छगुम्फिते कदा करी ससीयमं कृपाकटाक्ष भाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमान पुष्पमेकलागुणे प्रशस्तरत्न किङ्किणी कलापमद्लुमञ्जलि इन्द्रशुण्डदण्डिका शोभगोरुके ससीयमं कृपाकटाक्ष भाजनम् अनेकमन्यमागमन्यु नुपुरार सकल समाज राज हंसवं नित्कनादिरूरं विलोल हेम वल्लवी चंक्रमे कदा करी ससीयमं कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंतको विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुरो मजा विरिंच जा पराप अपार सिद्धि रिद्धि दिग्धि सत्पदांगुलीनके करी ससीयमं कृपा कटाक्ष भाजनम् महेश्वरी त्रियेश्वरी सदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद बकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजाधिके शिराधिके नमोस्तुते इति स्माद्भूतं स्तवं निशम्यभानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जन कृपाकटाक्ष भाजनम् तदैव सञ्चिततिरुपकर्मनाशनं भवेत् तदा ब्रजेन्द्रसु मण्डलप्रवेशम् करी ससीयमं कृपा कटाक्ष भाजनम् जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण नमामि सारम् सच्चिदानन्दरूपं रसद्कुण्डलं गोकुले राजमां जशोदाभियोलु फलाब्दावमानं परं इष्टमातं ततद्रुद्धगोष्ठा रुदन्तन्मूर्नेत्रं जुग्ममृगान्तं कराम्बुजयुग्मेनो सातङ्कनेत्रं मूर्धाशताम्बो शिरेकाङ्ककण्ठो हितागरे धरं रानन्दकुण्डे सगोसन्निमज्जन्तम् आक्षापयन्तम् तदीयसिताभ्यसु भक्तिर्दिशातम् पुनः प्रेम
सता प्रीतिवन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षं पदेनुवा न चान्नं विनेयं वरे साधपीयम् इदं तेव पूर्णतो गोपाल बालम् सदा मे इदं ते मुखाम्बुज अवक्तनीलै वृतं कुन्तलै स्निग्धं रक्तैश्च गोपाम् मुष्टुम्बितं बिम्ब रक्तादरं मे मनसा विराताम् अलं लक्ष्यम् नमो देवदामो दरायन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमाननाम् कृपादिष्टिवृष्टाति दीनं वतानु प्रियाने कुबेरात्मजो मोटरी बजाद्वा तयामचितौ भक्ति भाजो कृतो तथा प्रेम भक्ति सकामे प्रजाच न मोक्ष प्रभोस्ति दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने सुरादित्तिदाम्ने तदीयधरायत विश्वसदाम्ने नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो अनन्तलीलाय दीनाय नमामि स्वारं सच्चिदानन्दरूपं रसदुन्दलं गोकुले नमो राधिकायै तदीय प्रियायै ओ नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो राधिकायै नमो अनन्तलीलाय जय दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर ओ राधा दामोदर की जय जय श्री राम। ये अच्छा बजाते हैं? हाँ, अच्छे संस्कार है ना। हाँ? ज्यादा ये करो तो फिर आगे चला जाएगा। पंडा था ना पिछले जन्म में। हाँ। ज्यादा किसी को प्रतिष्ठा दो ना, उड़ जाएगा फिर गिर जाएंगे। हाँ? ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ॐ वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमाद्रै कृपामयि त्वां शरणां प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दे वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितां वदामि राधां करुणावरद्र ततो मम नास्ति गतिर्नकारि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सबसे पहले गुरुपाद पद्मलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसमाध भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसमाध भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसमाध भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गोविंद गोस्वामी महाराज भक्त श्रीधर गोस्वामी भक्त प्रिय गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव जी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग शिष्य राधा दामोदर की कुछ कथा श्रवण कर रहे थे। प्रातः काल में यशोदा दामोदर की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। सत्यव्रत मुनि स्तुति आदि कर रहे हैं। जिस कथा प्रसंग पद्म पुराण में वर्णन हो रहा है, राधा दामोदर अष्टक और श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के दामबंधन की कथा भी श्रवण कराया। और पुराणों भी राधा दामोदर की भी कथा है। तो दो दामोदर है, एक राधा दामोदर और एक यशोदा दामोदर। वात्सल्य भाव की कथा यहाँ पर वर्णन होती जा रही है। और अंत में राधा दामोदर की कथा भी इस अष्टक में वर्णन किया गया। पहली श्लोक में करे नमामि शरणं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान यशोदाभ्यूलु खलाब्धवमान परामृष्टमत्तम ततद्रुत गोत्वा। पहले श्लोक में वर्णन हो रहा है जिनकी कपड़ों पर दुदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अपराकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधिभाण्ड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर उखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्होंने माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर
पकड़ लिया है। ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। इस कथा प्रसंग हम लोग 2 दिन जावत श्रवण किया, आज तीसरे दिन है। हमने ये भी श्रवण किया, ये नमामि शरण जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं वो कौन है? स्वयं भगवान है, ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण जो लीला प्रस्तुत कर रहे हैं तो कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। इति चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान, स्वयं भगवान का एक भगवान और एक स्वयं भगवान। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, स्वयं रूप, तदिकात्म रूप और आवेश, ये 3 स्वरूप में भगवान नित्य ही विराजमान होते। फिर स्वयं रूप के 2 विभाजन किया गया, स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश है। इस समस्त कृष्ण तत्व के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इसलिए सत्यव्रत मुनि पहले प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए पहले अपने इष्ट देव की भी प्रणाम करें। ये नमामि शब्द के द्वारा ही यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं किसको में प्रणाम कर रहा हूं। सिर जहां तहां झुकेगा नहीं, कहां झुकेगा? अपने इष्ट देव के प्रति, नहीं तो काली शिव दुर्गा सबकी प्रणाम करो, ठीक है। शास्त्र में कहा गया हरिरेव सदारद्ध सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्रद्दा नावज्ञा कदाचन। इतरे ब्रह्म रुद्रद्दा, जितने भी देव देवियां हैं सबको क्या करो? सम्मान करो, अनादर मत करो। क्यों? ये सारे देव देवियां भगवान की आज्ञावाही सेवक सेविका है। इसलिए किसी देव देवा की अवज्ञा करना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं ये है नहीं है, क्यों? ये सब भगवान की विभूति भी कहा जाता है, शक्ति प्रकाश कर देते हैं। नहीं देव देवता कैसे काम करे? ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता, ब्रह्मा जी कहा जाता है, सृष्टि के भार दिया, सृष्टि करने के लिए उनको ब्रह्मा जी को भार दे, जाओ तुम्हारी सृष्टि के लिए मैं तुमको नियुक्त करता हूं, काम करो। तो कैसे करेंगे? काम भी दिया और साथ ही साथ भगवान ने क्या की? शक्ति संचार कर देते। गुरु शिष्य के उसी प्रकार जो है शक्ति संचार कर देते हैं। तो गुरु कृपा से ही वो सब कुछ करते। किंतु कहीं गुरु के चरण में अपराध हो जाए फिर क्या हो जाए? पुनः मुसी का भाव हो जाए। आज में पुनः मुसी को समझते कि नहीं? क्या है? एक चूहा था, दौड़ रहा था, इतने समय एक कौवा जो है उसको पकड़ ली, चोंच में उठा, पेड़ पर बैठे और अकस्मात वो चूहा जो है, छोटा सा चूहा जो है वो कोई के मुख से नीचे गिरा और डर गया। आकर के एक संत महात्मा की चरण में आश्रय ले ली। संत महात्मा उनको स्थान दे दिए चूहा को। संत महात्मा के पास कहाँ चूहा रहने लगे। इतने समय बिल्ली आ गया। बिल्ली आकर के चूहा के जो है आक्रमण करने लगी। संत महात्मा अपने जोग बल से वो चूहा को क्या बना दी? बिल्ली बना दी। मैं फिर थोड़ी बाद में एक कुत्ता आ गया। कुत्ता आकर के बिल्ली को आक्रमण करने लगे। वो डर गए और जब डर गए संत महात्मा के चरण में आस गया। संत महात्मा उसको क्या बना दी? कुत्ता बना दिया। थोड़ी बाद में एक
शेर आकर के कुत्ते के जो है आक्रमण कर ले, वो कुत्ता आके संत महात्मा के चरण में आश्रय ले। संत महात्मा उसको क्या बना दिया? शेर बना दिया। अरे हाँ, अब तो मैं शेर बन गया है। तो फिर संत महात्मा क्या करने लगे? वो संत महात्मा भी आक्रमण करने लगे। अरे मूर्ख, तुमको मैं चूहे से क्या बनाया? शेर बनाया, और तुम मुझे मारना चाहते, खाना चाहते। जा पुनः मुझे कहो। तात्पर्य क्या है? गुरु कृपा से सब कुछ में प्राप्ति होता है? और गुरु चरण में अपराध होने पर सब धीरे धीरे नष्ट हो जाता है? इसलिए शास्त्र में कहते हैं हमें कहां से शुरू करना चाहिए ना। हम जो कह रहे थे, जितने देव देवी सारे देव देवी को क्या करना चाहिए? सम्मान दो, है कि नहीं? नहीं सम्मान दो तो आगे कैसे बढ़ेगी? है माताएं काल क्या बनाया? अच्छा है? अच्छा है कि नहीं? पति को क्या मांगा? दीर्घायु हो। पति दीर्घायु हो तो पति भी आएंगे और आप भी आओगे। अच्छा है कि नहीं? हाँ, करते रहो, उससे क्या होता है? पति यदि कम आयु हो जाए तो संसार में भार आपके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए क्या 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 करना चाहिए? भगवान के बर्तन पे हमारे पतिदेव की क्या वो दीर्घ आयु हो, जो हमारे संसार की भरण पोषण करते रहे। नहीं तो विधवा हो जाओगे कम बच, फायदा क्या होगा? इसलिए क्या प्रार्थना करो? क्या चुप? हाँ, उससे क्या होता है? अरे सम्मान दो ना, क्या होता है? अभी एकांती की थोड़ी निष्ठा हो गया है? थोड़ी सी चिट्ठी काट दे, सब छोड़ छाड़ के बढ़ जाएंगे। बेकार की बात है सब। इसलिए संसार में क्या करो? मिलजुल करके प्रीति के साथ रहो। है कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। यही तो शिक्षा है। वर्णाश्रम अचरतावता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराधते पंथा नान्यत तत्व कारणम। बात इसे है। वर्णाश्रम धर्म हम पालन नहीं किया, यथेच्छ होकर के भ्रमण करे तो कैसे हो जाएगा भाई? है कि नहीं? इसलिए संसार में यहीं से शुरू होता है हमारा पारमार्थिक जीवन। देखो शुरू होता है कि नहीं होता है? कहां से शुरू हो रहा है? वर्णाश्रम धर्म से है। 2-4 कथा सुन लिया, 2-4 साल भजन कर लिया, मैं राधा जी के दासी बन गई। अरे नहीं, राधा जी के दासी बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है? आज हम नहीं, पहले दूसरे का हम सम्मान दे, है कि नहीं? पतिदेव की सम्मान दे, है? और क्या संसार में सास ससुर के हम सम्मान दे, आदर करे, स्नेह करे। यही हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति की एक तरीका है। जो कैसे परंपरा में जो कर रहे हैं, हम क्या निंदा करना क्या है? एकांतिक की जब हो जाए तब आगे की बात। अभी एकांतिक होने में बहुत कठिन समय लगता है कि नहीं? इसलिए शास्त्र में कहा गया वर्णाश्रम आचरतावता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराधते पंथा नन्नत को तत्व से कारणम। हमें आगे संसार को कैसे बढ़ाना है? कृष्ण संसार करना। कल बताया ना कितने सुंदर, देखो वृंदावन की कथा सुना है आपने? पेड़ पौधे आदि देखो कितना सुंदर है? संसार हमारे कैसे होनी चाहिए? है पतिदेव ऐसे हो, कैसे हो? वृक्ष जैसी है। पत्नी कैसे हो? लताएं जैसे। और पुत्र कैसे हो? फल सर। और कन्या कैसे हो? पुष्प है। तब तो किसने संसार है? यही तो श्रीमद् भागवत में यही वर्णन करते जा रहे हैं। तो अच्छी तरह नहीं, पति भी रावण हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा, हिरण्यकशिपु हो तो मुश्किल हो जाएगा।
आया समझे। और पत्नी यदि सुपर्णखा हो फिर क्या होगा? वो भी भाई देखो, किसी के ऊपर दोष लगाने के पहले अपने सबके सम्मान करो, सबके आदर करो। हाँ समझे, है कि नहीं? ना गौड़ी मठ में 2 दिन आ गया बस बोले बात के बोले और नो, समझ में आता है नहीं है? चावल बनाते हैं ना, पहले क्या बोलते थे? चावल बोलते हैं। अभी क्या बोलते हो? अन्न बोलते। पहले क्या बोलते थे? चावल बनते थे। अभी क्या बोलते हैं? है? 2-4 शब्द सुन लिया फिर बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए कहते भाई, शास्त्र कहते हैं वर्णाश्रम धर्म के धीरे 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 चले, है एक बार उठा करके दूसरी पैर जमाए। हाँ समझे, हाथी के भांति। हाथी ऐसे दौड़ते नहीं है भाई। हाथी जो है अपने सूंड है ना, उसके घ्राण शक्ति ऐसे है वो सूंड के द्वारा जो चलते हैं ना, वो पता लग लेते हैं यहाँ पर गड्ढा है कि नहीं। ऊपर से तो मानो कोई पत्ता आदि रखे हैं, नीचे गड्ढा है, वो सूंड के द्वारा क्या कर लेते हैं, उनके घ्राण शक्ति ऐसी होता है, वो जहां पर गड्ढे पैर नहीं रखे है। आप सोचते क्यों? हाथी के शरीर इतने विशाल है, भगवान ने उसकी भी उसी प्रकार ये शक्ति दिया, घ्राण शक्ति दे दी इंद्रियों की, है। आप इसको देखो, शोध में देखो हाथी के बारे में। हाथी जब दौड़ते हैं ना, है वो भी उनके पता है कहीं कहाँ गड्ढा है कहीं नहीं है कि नहीं? तो उसी प्रकार जो है जीवन में भक्ति मार्ग में चलने के लिए विधि मार्ग के हम लेकर के चल। जब चलते चलते विधि मार्ग चलते चलते जब जो राग मार्ग में प्रवेश कर जाओगे, तब आगे बढ़ेगा अच्छी तरह से। इसे कहा भक्तिवंत ठाकुर क्या बोलते हैं? विधि मार्गो रत जाने साधीनता रत्न दाने राग मार्गे करान प्रवेश। कई बार मैंने भी कहा, कल भी कहा था, ये राग मार्ग में राग भक्ति कहां पर शुरू होता है? हो जाता है श्रद्धा से तो है, कि छलांग लगाकर कहां पर आ जाते हैं? रुचि तक पहुंचा देते हैं। किंतु सारे क्या बोले सीक्वेंस को स्पर्श करके जाते हैं, ऐसे नहीं। ये श्रद्धा से रुचि, किंतु उस श्रद्धा के बाद क्या आ जाता है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि है। किंतु ये राग मार्ग में क्या कर देते हैं? अति द्रुत गति से चलते हैं। जैसे ऊपर जाने के लिए 10 मंजिल छत पर जाने के लिए 2 रास्ता हैं। एक है सीढ़ियां, लिफ्ट में जाते हैं, और कौन सा अच्छा रहेगा? लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट में जाए तो रास्ता में यदि बंद हो गया तो निकालो कैसे? मैं सीढ़ी में नहीं जाता, मेरा वो गुरुदेव की स्मरण आ जाता है। ये रमन बिहारी को पता नहीं, मेरा मन में जो वो बिल्कुल जो है चप पड़ा हुआ है। आप लोग थे उस समय, देखे ना? तो इसी कहा जाता है 2 प्रकार की, एक सीढ़ी होकर के चलो और एक लिफ्ट में चलो। किंतु लिफ्ट जो जा रहे सारे मंजिल को भी स्पर्श करते हुए। तात्पर्य क्या है? रागानुग भक्ति में भी द्रुत गति से जा रहे, ठीक है, किंतु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, क्योंकि इतना ही है, ये जल्दी रूप में वो पहुंचा देते हैं बस, है। अर्थात श्रद्धा से रुचि जल्दी पहुंचा देते। और विधि मार्ग में सीढ़ी में चलते, 1 मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल होकर के ट्रेन में होकर चलते हैं ना। सीढ़ी थोड़ी ऐसे सीधी जा रहे हैं, हम जो जा रहे हैं ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे टेढ़े मेढ़े के चलते हैं ना, है कोई बात नहीं, पहुंचा देंगे वो। किंतु राग इसलिए कहते हैं श्रद्धा से रुचि। रुचि में कल मैंने कहा 2 लक्षण होता है, 2 होता है। एक है वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिनी और एक वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिनी। फिर रुचि को पार करके जब साधक
आसक्ति में पहुंच जाते हैं। तो आसक्ति में भी दो लक्षण भी बताते हैं। क्या क्या? भजन रुचि और भजनीय वस्तु में आसक्ति हो जाता है। भजन में रुचि, नाम भजन में रुचि, नाम बिना वो रह नहीं पाए। नींद टूटने के साथ ही साथ प्रभु के नाम ग्रहण करते हैं। नाम में इतने सब कोई कहते नहीं अच्छी तरह से मुंह हाथ धोए, स्नान आदि करें, प्रातः आदि सूचक क्रिया आदि करें, तिलक आदि करें, है मंत्र गायत्री मंत्र आदि जप करें, इसके बाद नाम करें। कोई भी विद्या शास्त्र में विधान दिखाया गया है। किंतु राग मार्ग में क्या बोलते हैं? उठने के साथ ही साथ मुंह हाथ धो और नहीं धो, प्रभु के नाम ग्रहण करो। बस नम नमकारी बहुधा निज सब शक्ति स्थापित निमित्त स्मरण नो काल। ओह, प्रभु के नाम कितने महिमा है। सोचो असोचो विचार आदि नहीं रहा, पवित्र अवित्र पवित्र भी विचार ही नहीं रहा। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में ही नाम करो, है आज है। नहीं तो आप स्नान आदि करोगे, एक तो नींद से उठे कितने बजे? 8 बजे फिर स्नान आदि करते करते 10 बजा देंगे, हैं? और फिर नाश्ते के समय टाइम हो जाए बोलते हैं। घर में नौकर है ना, नौकरानी है, अरे तो चाय चाय ना क्या बोलते हैं कि कॉफी क्या बोलते हैं? चाचा के नाम ले लेते हैं, क्या बोलते हैं? चाचा है ना, चाय 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 चाय। भारतीय ट्रेन में चले तो बस खोने तो नहीं देते। 3:30 बजने के साथ ही साथ चाय चाय चाय। चाचा चाचा कहाँ गया? चाचा के नाम पे है। तो आप भजन का कैसे करोगे आप बताओ? है आज इसलिए कहते वास प्रभु के नाम उड़ने के साथ ही साथ शरीर पवित्र हो अपवित्र हो, जिसे भी अवस्था में प्रभु के नाम, इसलिए नाम की महिमा है। नाम के द्वारा ही पवित्र होता है। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्थांग गतो पीवा जस मरेत पुंडरी काक्षम सब बज्ज अभ्यंतरम सूचि। पुंडरी काक्ष भगवान, कमल लोचन भगवान। भगवान के नाम लेने से क्या पवित्र हो जाता है कि नहीं? नाम की महिमा इतने सुंदर बता रहे। प्रभु के नाम ग्रहण करो, वाश है। थोड़ी समय नाम कर लो जैसे अवस्था में है। करते हो कि नहीं करते? नाम करने से नहीं तो नहा धोआ करके वो करके आते आते 10 बज गया, फिर तुम्हारे है ब्रेकफास्ट के समय आ जाएगा। ब्रेकफास्ट करके जूता पॉलिश करके चल दिया अपने काम में, तो नाम कब किया है? इसलिए साथ में इसलिए कहा जाता है, रागानुगा भक्ति में यही कहते हैं नाम की महिमा। रुचि, नाम में रुचि होनी चाहिए। नाम में रुचि जीवे दया। नाम में रुचि तो हो, है इसे कहा जाता है रुचि। रुचि के बाद यहाँ आसक्ति दशा में क्या हो जाता है? भजने रुचि, भजन में रुचि होता है और भजनीय वस्तु में आसक्ति है। भजनीय वस्तु में 2 हो जाता है, एक गुरुपाद में आसक्ति और होता है फिर अपने इष्ट देव राधा गोविंद चैतन्य महाप्रभु राधा गोविंद में आसक्ति। इसलिए भजनीय रुचि, भजनीय वस्तु में आसक्ति। इजाजत माधुर्य कादम्बिनी है। और गुरु में जितना तुम्हारी आसक्ति होती जाएगी और वही आसक्ति कहाँ बढ़ते जाएगा? है राधा कृष्ण अपने इष्ट देव में बढ़ते जाएगा, है कि नहीं? यही तो कहते हैं। और फिर आगे जाकर के जब आसक्ति की जब आसक्ति दशा में आ जाता है, उस समय साधक के जो है आत्मस्वरूप के आभास अभी आ जाता है। आभास में संप्रेम से आ जाता है। आसक्ति दशा में अपने स्वरूप की आभास आ जाता है। और धीरे धीरे भजन करते करते फिर साधक रति दशा में प्रवेश करते हैं। ये रति जो है भाव की प्रथम छवि कहा जाता है, प्रथम अंकुर कहा जाता है। और फिर रति गाढ़ हो ले, रति जब गाढ़त्व धारण कर लेते हैं वो भाव दशा को प्राप्त कर लेते हैं। भाव के बारे में भी कहा गया, शुद्ध सत्व विषयात्मा प्रेम सुजंग संभाक और रुचि विचित्त स्मार्सी न हृदसो
भाव उच्चते, कितना सुंदर है। अगर भाव उत्पन्न होने पर उनके दो लक्षण होता है, एक है अंतर्लक्षण, एक है बहिर्लक्षण, एक्सटर्नल सिम्टम्स एंड इंटरनल सिम्टम्स हो जाता है। एक्सटर्नल सिम्टम्स जो है, बहिर्लक्षण जो है, कितना होता है? 9 प्रकार होता है। क्या क्या बताओ? हाँ, इतना ऐसा मतलब क्या बोलो सब है। चंद्रवर्त कलतम वृत्तिमान सुन्नता असाबंधो समुत्कंठे नाम गाने सदा रुचि असक्ति तद गुणानुकाने प्रति तद वसति स्थले उत्तरजो सुरार्जित भाव अंकुरे जने। भाव रूपी अंकुर कार्य भाव है, जिसको रति कहा जाता है। तो उसमें ये 9 प्रकार लक्षण है। शांति चित्त जय, धीर स्थिर रहता है। क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी वो क्रोधित नहीं होता है, चित्त उसके क्षभित नहीं होता है। ये शांति का है। अवर्त करत, चंद्र वर्त करत, समय के जो है बिल्कुल वो नष्ट नहीं करते हैं। चंद्रवर्त करते हैं वृत्तिमान सुन्नता, काल बताए सब पता। चंद्रवर्त वृत्तिमान आशा बंधो समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणानुखानी प्रति तद वसति स्थल उत्तरजेशराज भाव अंकुरी। कितना सुंदर। और 3 जो है अंतर्लक्षण भी बारीक में बताया गया। 3 अंतर्लक्षण क्या है? कौन याद रखा? भगवत प्राप्त अभिलाषा। 3 अभिलाषा होते हैं उसमें। क्या? 3 अभिलाषा रहता है अंतर्लक्षण में। 3 अभिलाषा रहता है। ये है भगवत प्राप्ति अभिलाषा। भगवान के छोड़ करके हमारे जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं रहता है। कब प्रभु कब मिले, भगवत प्राप्ति अभिलाषा, एक अभिलाषा रहता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये अभिलाषा नहीं। साक्षात भगवान के हम कैसे प्राप्ति करें, साक्षात रूप में उनको कैसे दर्शन आदि करें। उत्कंठामयी प्रेम उसमें आ जाता है। क्या बोलते हैं? उत्कंठामयी है। अच्छा, इतने उत्कंठित होते हैं प्रभु कब मुझे मिलेंगे। जैसे पानी बिना हम रह नहीं सकते। पानी पीने के लिए हम जैसे उत्कंठित हो जाते हैं, उस प्रकार इतने उत्कंठित, उसे कहा जाता है उत्कंठामयी। जैसे गोपियां की उदाहरण दिया गया है। साक्षात रूप में गोविंद के दर्शन के लिए उत्कंठित होते हैं। प्रातः काल में कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं, गोपियां क्या करती है? गोविंद दर्शन के लिए वास है उत्कंठित होकर के खड़ी हो जाती अच्छा, दोनों तरफ है पेड़ के आड़ से है गोविंद के दर्शन है। गोपीनाम ननुनोत्पलम है वो श्लोक जो गोपीनाम ननुनोत्पलम है। गोप गोपी संगवृतम। जब कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं, गोपियां क्या इतने उत्कंठित होते हैं गोविंद दर्शन के उत्कंठित होते, उत्कंठामयी भक्ति है इसी का। और फिर क्या बोला? सौहृद अभिलाषा। सौहृद माने सुहृद भाव, जो जिस भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। क्योंकि रागानुगा भक्ति में 5 प्रकार की साधन आ जाते हैं ना, वो भी याद रखना चाहिए। भावमयी साधन, भाव संबंधी साधन, भाव अनुकूल साधन और भाव विरुद्ध साधन और भाव अविरुद्ध साधन। ये 5 प्रकार साधन के बारे में बताया गया रागानुगा भक्ति में। कितने साधन बताए? 5। कौन कौन याद रखा? हाथ उठाओ। है अरे याद है? बोलो। ये 4 प्रकार 5 प्रकार के साधन हमारे होते हैं। इसमें जो भावमयी साधन रहते हैं, संत दस सबको बादशाह माधुर जी, एक भाव को हमें ग्रहण करना पड़ेगा। शांत भाव की उसको हम छोड़ देते हैं। क्यों? संत में केवल निष्ठा रहता है, सेवावृत्ति नहीं है, ममता नहीं रहता है। इसलिए
संत के छोड़ करके दास सख वात्सल माधुर्य, ये चारों में कोई एक भाव को लेता, उसमें चारों के भी दास के छोड़ करके सख वात्सल्य और माधुर्य के लेना पड़ता। उसमें भी सखों के छोड़ दिया जाए फिर दो रह जाते, वात्सल्य और माधुर्य रहते, वात्सल्य भी छोड़ दिया जाए फिर माधुर्य में के लेना पड़ता है। जिसके गोपी भाव प्राप्ति करना है तो ये श्रृंगार रस माधुर्य भाव को उसको ग्रहण करना पड़ता है। वो भी माधुर्य श्रृंगार रस में भी 5 प्रकार की जो है भी बताएगी। सखी भाव आ रहे नहीं, पहले तो होता है एक सख्या में आता है, एक परख्या में आता है। सख्या भी हम क्या करते हैं, वो भी छोड़ देंगे। गुरुदेव उदाहरण देते हैं, जैसे लौकी के बीज लगे ना, लौकी जानते हो क्या है, घिया हुआ, उसके बीज लगाओ, देखो वो जब अंकुरित होकर के जब पौधा हो जाता है, थोड़ी 1-1.5 महीने के बाद तो जो लता जो बढ़ते हैं ना, उनके अनेक जो है क्या बोलते हैं शाखाएं आ जाते हैं। उसको हमें क्या करना, एक एक करके उसको काटना पड़ेगा, स्टेम करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जो है, समझ में आ रही कि नहीं, क्या समझ में आया, ये जो उसी प्रकार जो है माधुर्य भाव में, जहाँ पर एक तो सौख्या में हमें कर दिया, फिर इसमें परक्यत्व के भाव को रखा है माधुर्य भाव में, वो भी उसमें जो है 5 शाखाएं भी आ जाता है। जितने काटोगे ना उतने भी वो शाखाएं आ जाएगी, विस्तार हो जाता है। एक लोगों के जो पौधा जो है पूरा जो है आपको बगीचा को घेर लेंगे। लोग खेती किया कि नहीं लगाया, घर में है ना, अरे घर में छत पर जो गमला में जो है मिट्टी लेकर के लगा दो 4 महीने में है कि नहीं, हम यही बता रहा हूँ। देखो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, 5 जो है उसमें फिर 5 जो शाखाएं हो जाता है। पहले 2 शाखा हुई, एक को काट दिया, सखियों को काट दो और के परक्यत्व के रखो, एक शाखा रहो। फिर उसमें जो गोपी भाव जो 5 जो है उस एक जो शाखा है उसमें 5 आ जाता है, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी और प्राण कृष्ण। तो एक एक करके क्या करो, काटते रहो, हाथ में छटाई करते रहो सब, धीरे धीरे 2 के रख दो, 3 के काट दो, सखी, नित्य प्राण सखी, नित्य सखी, प्राण प्रिय सखी, प्राण पृष्ठ सखी, इसको भी कर दो। चलो हमें दूल्हा बने, तो अभी 2 रह गया, सखी, नित्य सखी और प्राण सखी है, उसी की कहा जाता है मंजरी भाव से पूर्ण सखी है। और ये भी 2 में एक भी रखना पड़ेगा, फिर तुम्हें भाव के अनुसार है, उस भाव को लेकर के तुम्हें चलना पड़ेगा। जब तम्बुल और पुनपाद मर्दन उपयोदान अभिसारादि भी है रघुनाथ दास। और भी भजन आदि करना है, अनुगत्य में भजन होता है। अभीर पुल्ली पथिपुत्र कंता दस्साभिलसिता बलास्वा चिरूप चिंता मुनिसोक्ति संस्तो मत संतो दुर्दांतो हये सुरस्तम। रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक में लिख रहे हैं, रूपानुगत्य की एक सुंदर माधुर्य प्रकाशित दिखा रहे रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, नरोत्तम श्यामानंद श्रीवास ठाकुर जी है, पवित्र विचार धीरे धीरे भक्ति विनोद ठाकुर है, गुरु परम दिखा रहे, कितना सुंदर इसे भाव है। तो उसी प्रकार जो है प्राण पृष्ठ सखी किला संकोचिता भूमिका, जहां पर प्राण पृष्ठ सखी ललिता विशाखा आदि निकुंज रस मंदिर में प्रवेश कर नहीं पाते, वह प्रवेश करने के लिए उन लोगों को क्या करना पड़ता है, ये समस्त जो राधा जी की मंदिरें जहां पर रहती उनकी भी अनुमोदन लेना पड़ता है। जो प्राण पृष्ठ सखी ललिता विशाखा, जो स्वयं राधा जी की भी कंट्रोल करते हैं, ललिता देवी जी है, ललिता अष्टक में श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, धुर्ते वजंत तनया तनुसुष्टु ब्राह्मण मां दक्षिणा भव कलंकिनी राधा लाघवा। राधा जी की भी उन्होंने क्या करते, अंगुली निर्देश करके भी
है, निर्देश देती है उंगली उठाकर, ये करो ये करो, है, कहते ना सुंदरी सभा। बस वही ललिता देवी वही निकुंज मंदिर में है, निर्मित निकुंज मंदिर में जब प्रवेश करने जाते है, तब इनको भी है अनुमोदन लेना पड़ता है। किसका? ये मंदिर है जहां पर है। तो ये समस्त इतने सुंदर भाव हमें दिए, इसलिए ये समस्त भाव हमें लेना पड़ेगा। भजन तो यही होता है, इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं। अभी तक इतने जो बताया, ये 5 प्रकार रागानु का साधन में एक होता है क्या? भावमय साधन है। फिर भाव संबंधी साधन का है। ये समस्त में आलोचना होनी चाहिए, बार बार आलोचना करो तब तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। है, एक जन्म याद रखो, बार बार कर, एक पत्थर पर बार बार क्या बोले हैं, रेखा खींचो तो उसमें निशान पड़ेगा, एक बार भी नहीं पड़ेगा, है, बार बार आलोचना करना पड़ेगा। इसी के कहते हैं संस्कार कहा जाता है। वो बच्चा मृदंग बजा रहे, हो सकता है पूर्वजन में कितने मृदंग बजाया है, अच्छा लग रहा है ना, तो सुंदर हाथ चल रहा चाहिए। इसी प्रकार जो बार बार श्रवण करना पड़ेगा, समझ में नहीं आ जाए, सुनो पढ़ो, सुनो पढ़ो, रेखा लगा है, आ जाए। इसलिए कहा जाता है श्रवण करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे। एक बार सुन लिया, अरे महाराज तो वही तो सुना, अरे नहीं, बार बार श्रवण करो। है, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात और अनावृत्ति शब्दात 3 बार कहा जाए, एक बार नहीं, बार 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 है। वेदांत सूत्र में अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति है। तो हमारी यही तात्पर्य जो होता है, ये किस प्रकार हमें सेवा मिले। इसलिए भावमयी साधन, भाव संबंधी साधन और भाव अनुकूल और भाव प्रतिकूल। भाव की जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना है। आज रुक्मिणी आदि ध्यान ये हमारे भाव के प्रतिकूल बन जाए, इसलिए त्याग। और भाव अविरुद्ध, अविरुद्ध माने जो, हाँ अरे क्या है, क्या चीज बता दो, अनुकूल भी नहीं है प्रतिकूल भी नहीं है। असत्य आदि में पानी चढ़ाओ और क्या करते हैं, धागा बांधो है। हम निंदा नहीं करें, असत्य भी भगवान के क्या है, विभूति का भगवान कहते हैं। पेड़ों में मैं पीपल पे, अर्थात मेरे जैसी शक्ति उसमें है, विभूति है यही। किंतु रागानुगा भक्ति में चढ़ाओ ना चढ़े, क्या पानी चढ़ाओ और नहीं चढ़ा तो क्या होता है? आज नहीं पानी चढ़ाना तो किसमें पानी चढ़ाओ, अरे तुलसी में पानी चढ़ाओ है। आज है, पानी तो चढ़ाना है, ठीक है। असत्य भिक्षु के देखा तो उसके भी सम्मान करो, प्रणाम करो, तो ठीक है, भगवान की विभूति शक्ति है कि नहीं। सम्मान देना चाहिए, कहीं कहीं अवज्ञा होनी नहीं चाहिए। हमारी कहने की तात्पर्य ये नहीं है पानी चढ़ाओ, असत्य भिक्षु में पानी चढ़ाओ, पीपल पेड़ में और पूरा उसके धागा लेकर के बांध दो, ऐसे मत करो। ऐसे किसी को यदि राग भक्ति की प्राप्ति करना है तो ये समस्त विधान है। वो ब्राह्मण आदि की सेवा है, आज वो सेवा ठीक है। भगवान का अत्यंत प्रिय गाय है, गौ सेवा कहा जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो गौ सेवा में लगे रहे और मंगल आरती में नहीं आए तो गौ सेवा करके फायदा क्या हुआ है। गायों की सेवा करना अच्छी है, गौ सेवा करो है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले, ये पूरा जन्म में मैंने गौ सेवा किया था है, इसके फलस्वरूप मैं ब्राह्मण कुल में जन्म ले ली, है कि नहीं। चैतन्य एक दिन एक सर्वज्ञ ब्राह्मण आ गया, सर्वज्ञ जो सब जानते हो, तो सबको बोले तुम्हारी ये महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु निमाई बोले मेरा पूरा जन्म का इतिहास बताओ, मैं ब्राह्मण कुल में कैसे जन्म ले लिया है।
वो सर्वज्ञ जो है ब्राह्मण वो व्यक्ति जो है आंख बंद करके महाप्रभु का ध्यान करने लगे। देखा कभी मत्स्य के रूप में और कभी कुर्मा के रूप में, कभी निसिंह के रूप में है, कभी वामन अवतार के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, इतना होते जा रहे है। ये है कौन? वो बोल नहीं पा रहे। तो महाप्रभु कहने लगे अरे सर्वज्ञ ब्राह्मण तुम क्या करोगे? सुनो, मैं ब्राह्मण कुल में कैसे जन्म लिया, छोटा निमाई है। कहने लगे देखो पूर्व जन्म में मैं गो सेवा दी, गो सेवा करके मैं ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया। और वृंदावन विहार इस प्रकार कृष्ण जो स्वयं भगवान, मैं वही कृष्ण हूं। दापर युग में मैं गोचारण आदि की, गो सेवा की, अर्थात भगवान की अत्यंत प्रिय को है गाय है। आज गाय की सेवा करो ठीक है, किंतु ये नहीं है जो गाय सेवा करते थे गोर उठाते उठाते तुम्हारी बुद्धि भी गोबर बन जाए है? ऐसे हैं। इसलिए गो सेवा अच्छा है, गोदान अच्छा है, सब प्रकार की अच्छे बता रहे, किंतु जब रागानुगा भक्ति में इसे कहा जाता है अनुकूल भी नहीं है, क्या बोले प्रतिकूल नहीं है, आज न्यूट्रल कहा जाता है। ब्राह्मण को दान दो ठीक है? निग महाराज दान दे देते तब क्या, और अंत में उसको क्या मिला? गिरगिट बनना पड़ा, तो फायदा क्या हुआ है? ठीक है ब्राह्मण की यथासाध्य दान दो, चलो वो तो छोड़ेंगे नहीं, और दो और दो और दो। 100 रुपया दे दिया तो बोले अरे इसके बाद और भी है, फिर 500 रुपया का नोट दे दिया, फिर बोले और दो। 100 पहले कितना दिया? 100 रुपये के नोट है। विदेशी भक्त यदि हो तो और भी मजा आ जाता। 100 रुपया दे दे, बोले अच्छा अरे और दो, तो विदेशी भक्त क्या उसके पता क्या है, 500 रुपये के नोट दे दिया, अरे हाँ फिर कहेंगे और दो और दो और दो है, भादी के नहीं, और नहीं दो तो गाली देते रहे। चलो कोई बात नहीं, जितना है दे करके भाग जाओ है कि नहीं है? हाँ। ये भक्ति की कहा जाता है कि न्यूट्रल कहा जाता है, समझ रहे? ठीक है, ब्राह्मण के सम्मान होनी चाहिए है? आज यही तो दिखाया नृग महाराज उपख्यान में, तो यही तो दिखा दिया जब मैंने इतने दान दक्षिणा दिया और अंत में फल मुझे क्या प्राप्ति हुई? गिरगिट बनना पड़ा है। तो फिर है? इसलिए ये समस्त किसी कहा जाता है क्या? भाव अविरुद्ध, विरुद्ध नहीं है और हमारे अनुकूल भी नहीं है। क्या विरुद्ध? चलो है तो ये समझते 5 रागानुगा भक्ति की 5 साधन के बारे में भी बताया है। गौड़ी वैष्णव के सिद्धांत कितने सुंदर, भावमयी साधन, भाव संबंधी साधन, भाव अनुकूल और भाव विरुद्ध और भाव अविरुद्ध, 5 साधन हमें है। बहुत सुंदर ये समझते धीरे, तब हम धीरे धीरे चलते रहे। हाँ, जैसे भाव उत्पन्न होते सौहृद भाव होगा, सुहृद भाव, सुहृद क्या है? मित्रता भाव होगा। किसके साथ मित्रता होगा? जो भाव के द्वारा आप अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं, उसी प्रकार उनकी जो प्रियजन जो है उनके साथ संग करना पड़ेगा। जैसे मानो आप मंजरी भाव की प्राप्ति करना चाहते हो है, तो राधा जी की जो जितने भी मंजरियां है उनकी भाव को आपको लेना पड़ेगा। उसी प्रकार उनकी कीर्तन होनी चाहिए, उनकी गुणावली को आपको करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी हो जाए। रूप मंजरी की कीर्तन करो है। आज श्रीरूप मंजरी पद सही मोरो संपद, सही मोरो भजन साधन। कितने सुंदर भाव होते हैं। श्रीरूप मंजरी पद, राधा जी की मंजरी भाव में सेवा करना है, तो रूप मंजरी की जो है रूप मंजरी तो दासिका अंग संश्रित रघुनाथ दास
श्री रूप मंजरी आदि जो है, मंजरी आदि जो है ये सब, और उसमें मुख्य कौन है? रूप मंजरी के बारे में बता रहे हैं। आज अनंग मंजरी भी भाव की उसमें बोले, जो जिस मंजरी के भाव की सेवा आदि करना चाहते हैं और उनकी अनुगत्य में ही सेवा होनी चाहिए। इसलिए काल मैंने कहा था ना, सब ऊंची ऊंची स्तर के बता देता हूँ सारे है। वस्तु सिद्धि प्राप्ति करके भी चले जाए वहां पर सेवा तो प्राप्ति होगी है। सेवा प्राप्ति एक होता है निकटगत सेवा और एक होता है दूरगत सेवा है। याद रहेगी नहीं रहे? हाँ, समझ में आते समझ लो, एक जन्म समझ लो बस है। किसी जन्म में साधन में आ जाएगा, किसी जन्म में सिद्धि में आ जाएगी। एक है निकटगत सेवा और एक दूरगत सेवा, और ये क्या बताए? एक स्वतंत्रमयी सेवा और एक अनुगत्यमयी सेवा। यहां पर मंजरी में भी इसी प्रकार है। तो उसी प्रकार सेवा के बारे में भी बता रहे है। जो राधा जी के नित्य जो काय भव स्वरूप जो है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी साग्र निज रूप तया कला भी, ये समस्त जो सखियां जो है जो संग राधा जी की प्रकाश स्वरूप है, साधारण नहीं है। ललिता सखी, ललिता कोई साधारण नहीं, राधा जी के ललित भाव के एक साक्षात मूर्तमान प्रकाश ललिता सखी कहा जाता है। विशाखा राधा जी के विशेष भावों के प्रकाट रूपे विशाखा सखी। रूप मंजरी राधा जी के रूप की साक्षात मूर्तमान प्रकाश जो रूप मंजरी है। दिखाते ऐसे दिखते रूप मंजरी दिखाई पड़ा, किंतु वास्तव रूप में राधा जी की रूप की साक्षात मूर्त प्रकाश रूप मंजरी सेवा है। ये लोग सब राधा जी के सब नित्य काय बुहा सर्पिणी से ललितादि संगीता ललितादि संगीता काय बुहा रो चेतन चेतन है। सखीर अनुगत्य बिना भजिले ना पाए ब्रजेंद्र नंदन। ये समस्त सखी के अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा है। वहीं पर अनेक प्रकार के ग्रुप जूथ होता है, श्रेणी होता है अपने अपने, उसके अनुगत्य में हमें सेवा प्राप्त है। बहुत सुंदर सुंदर भाव दिखाती है। तुम कभी रूप मंजरी नहीं बन पाओगे है। मैं रूप मंजरी हूं, मैं ललिता हूं, इसको कहा जाता है कि मायावाद फिलोसफी आ जाता है। इसे कहा जाता है अहंग रूप सना हो जाता है। जैसे अद्वैतवादी कहते हैं अहंग ब्रह्म, आई एम भगवान है। तो मैं रूप मंजरी हूं, ये भावना नहीं रहे। ये भावना रहे तो तुम्हारे वजन चौपट हो जाएगा है। तो अनुगत्य में से भावना है, ये समस्त भावना है। रूप मंजरी इसे कहते हैं रूप मंजरी तदासी का अहं संश्रयित है। तो ये समस्त भावना होगा हमें ले जाना पड़ता है कि इतना ही हमें तो सेवा में मिल जाएगा। क्या मिलेगा? अनुगत्यमयी सेवा। एक होता है जो राधा जी के नित्य जो कायवा सर्पिणी, वो लोग की सेवा कहा जाता है स्वतंत्रमयी सेवा। स्वतंत्रमयी वो राधा जी की जो सेवा करेगी उनकी इच्छा पर। आज राधा जी की किस प्रकार वस्त्र प्रधान पहनाएंगे वो लोग निर्णय ले लेते हैं। आज कौन सा वेश होगा? सुबल वेश कराएंगे है। राधा जी को क्या बना देंगे? सुबल वेश बना देंगे है ना है। गोपाष्टमी के दिन बनाते हैं ठाकुर जी के है। कृष्ण के क्या बना, राधा जी के क्या बना देते? सुबल वेश बना है। वास्तव में सुंदर है। ये निर्णय कौन ले रहे हैं? ये समस्त जो है नित्य सिद्ध सखियां जो है कैसे कौन सा कैसे सेवा आदि करना है ये समस्त आदि ले। बहुत सुंदर ही समझ। स्वतंत्रमयी सेवा कहा जाता है। अर्थात जो नित्य सिद्धा जो है ललिता विशाखा आदि इन लोग के स्वतंत्र माने निर्णय लेना आज कैसे लीला आदि प्रस्तुत करना है। अनंत लीला है राधा गोविंद की। निकुंज रहस्य में अनेक लीला आदि है। आज मल्ल युद्ध करना है किसके साथ? कृष्ण के साथ। मल्ल युद्ध करने की जो वेश जो पहनाना है कौन पहनाते हैं? इस समय तो सखियां पहना दी। वो भी तो कैसे वेश पहनाना है अक्षय वट पर हम जाते हैं ना, हमारी कथा सुनाते हैं
बहुत सुंदर है? इसलिए कहता है इन लोग के जो है स्वतंत्र, और जो साधक साधन भजन करके फिर वस्तु सिद्धि प्राप्ति करके नित्य धाम में चले जाते हैं, उनकी जो सेवा होता है वो अनुगत्य में ही सेवा व परतंत्र में ही सेवा करना, अनुगत्य व परतंत्र, उनके अनुगत्य में सेवा करना है। वो कहेंगे आज ही करो, यही सेवा करो, फूल लेकर के आओ, फूल चुनने के काम तुम्हारे हो जाए है। माला गूंथो, माला गूंथना पड़ेगा, माला गूंथ करके सखियों के हाथ में नित्य है। गथिया मालतीर माला दिव दुहार गले, अधोर तुलिया दिवो। और कभी कभी ये सखियां जो होती है कृपा करके भी देते, चाहो किंतु कथनचित न सर्वदा नहीं, कभी कभी दे दी, सेवा करो, सेवा की दे है। इसको कहा जाता है, एक है अनुगत्यमयी सेवा और एक स्वतंत्रमयी सेवा व परतंत्र, और एक होता है दुर्गत सेवा, निकटगत सेवा। ये भी सेवा की भी परिपाटी होता है। जाओ चंदन घिस करके ले आओ, हैं, ये दुर्गत सेवा है। और चंदन जो है सेंट्रल पेस्ट जो है वो कैसे आज उपकरण कर रहे हैं, ये लोग लगाते हैं, रूपांजलि बलो ललिता जो है ये लोग लगाते हैं। किंतु कभी कभी ये लोग भी कृपालु है, ये लोग कभी कभी कहते हैं अच्छा ये तुम लगाओ है। ये सब लगाने के लिए ऐसे थोड़ी होता है, सब पहले जाने के पहले ही सबको आपको क्या दिया जाए, सब प्रकार की ट्रेनिंग दिया जाए, ऐसे थोड़ी चले जाओ है, सहजिया थोड़ी है। वहां पर अच्छे थे, इसलिए कहते हैं पल्ल दासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कवि श्रीराधिका पदे काले मिलाइए अज्ञा सेवा समर्थ है। श्री विशाखा पदे संगीत सीखिए, एक एक सखियों के निकट एक एक विद्या आदि जो है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सब प्रकार वाद्य यंत्र आदि, और उस समस्त अष्ट सखियां जो है सब एक एक विद्या में क्या है, सब स्पेशलिस्ट है, PhD सब है वो है, स्पेशलिस्ट है। ललिता देवी की तंबुल है वो 8 उसमें लिखा है ना, है 8 अष्ट सखियां जो है, ललिता विशाखा सुधवी रमदवी चित्रा चंपक लता है, ये 8 सखी सब एक एक सेवा में सभी एक्सपर्ट है। सब सेवा में तो है ही, क्योंकि तथापि हम बनने है वो उनकी सेवा आदि करते निर्धारित रहते सब, वहीं पर सब सीक्वेंस में सब चलते हैं सेवा के, उनके अनुगत्य में सेवा आदि करना है। और उनके अनुगत्य में अनेकों जो सखी मंजरियां आदि भी रहते है, ये समस्त भाव इसमें बनना है। सब बहुत सुंदर सब कथा है। कार्तिक महीने इसी कथा तो स्मरण करो, और क्या करो, क्या करोगे, हरिनाम करो और चिंतन करो है। यही लीला स्मरण और गाओ कृष्ण नाम अचिराते कृष्ण प्रेम अभी प्रेमोदान है। भक्तिमान ठाकुर आशीर्वाद दे रहे, यही लीला स्मरण और गाओ कृष्ण नाम, यह लीला को स्मरण करो और कीर्तन, यही लीला स्मरण और गाओ कृष्ण नाम, भजन करो, नाम चिंतन करते करते इसकी प्राप्ति हो है। आज भाव में आविष्ट हो जाए, और क्या बहुत सुंदर, कहाँ कहाँ सब पहुंचा दिया सब है। कहाँ वर्णाश्रम धर्म से तुम्हारे क्या उसको कौन सा कहते हैं, अरे कोरबा चौथ ना मेरे समझ में नहीं आता क्या है। हाँ पहुंचा दिया, कहाँ पहुंचा रही भाव तो पहुंचा दिया है। अच्छा है ना, हाँ लेफ्ट में चलो सब गोलोक वृंदावन पहुंचा दिया है। बहुत अच्छे, पति आनंद हो रहे हैं, बोले आज महाराज ने क्या बता दिया हाँ दीर्घायु हो, बस ठीक है, क्यों नहीं दीर्घायु, भगवान की दीर्घायु, भगवान अरे पतिदेव दीर्घायु, पैसा कमा करके लाए गौड़ी मठ में हम सेवा करें, पैसा कमा नहीं करते कैसे सेवा करें, सीधी बात बोलते हैं बात है कि नहीं, पतिदेव काम करो ठीक है, हाँ जी है,
भाई किसी के खुश करने के लिए तो खाना पीना देना पड़ता है। हाँ हमारी पति पत्नी बहुत अच्छी है कमा तब कमाएंगे नहीं कमाएंगे है उसे जोश आ जाएगी। मालिक पति रावण के भांति हो कुछ भी हो प्रशंसा करो। अरे अच्छा है खिलाओ अच्छी तरह से। रागानु भक्ति इसलिए तो कह रहे पर व्यासिनी नारी व्यग्रो की गृह कर्मसु असंत असदंत नव संगरासयम। महाप्रभु संग ये श्लोक संग महाप्रभु के मुख निश्चित वाणी है। ये श्लोक याद किया कि नहीं है? पर व्यासिनी नारी व्याग्रोपी गृह कर्मसु। पर पुरुष के प्रति आसक्ति रखने वाले जो व्यक्ति क्या करते हैं किसी के समझ नहीं देती है ये मैं दूसरे के प्रति आसक्ति। गृह कर्मसु अपने गृह की कार्य जो है अत्यंत जो है सुंदर रूप में करते रहते है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं रगणगा भक्ति के ये उदाहरण दे रहे है। मैंने नहीं कह रहा हूं ये आप पर व्यासिनी बन जाए है। उदाहरण दे जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं पर व्यासिनी नारी व्याग्रोपी गृह कर्मसु। पर पुरुष के प्रति आसक्ति रखने वाले व्यक्ति क्या करते हैं अपने गृह कार्य के अत्यंत सुचारू रूप में करते रहते हैं। किसी को पता नहीं लगते देती है। गोपियां कृष्ण के साथ प्रेम करते हैं किसी के ब्रजवासी के पता है क्या किसी को पता नहीं। ये जटिला कुटिला तो केवल एक अनुमान लगा देते हैं। हाँ से पकड़ने के लिए भी बहुत प्रयास किए पकड़ नहीं पाए है। राधा कृष्ण वही जावट में घर में दोनों एक साथ में मिल है। बोले इसे घर में बात कौन कर रहे ये नहीं जरूर जो है वही काले आ गया से ऊपर से क्या कि कुंडी लगा दी अधिक हल्ला कर दिया है। पूर्णमासी आदि है जितने भी बड़े वृद्धा स्त्रियां कर बोले देखो तुम लोग विश्वास नहीं करते। आज तो चूहा बिल्कुल है कि जो वो होता है ना पिंजरे में आ गया तुम विश्वास नहीं करते। देखो हम खोलते हैं पिंजरे चूहा के निकालता हूं चूहा समझते हो मैंने कृष्ण आज अंदर में है तो भगवान भी कम नहीं है भगवान क्या गए काली के रूप धारण कर वंश को ऐसे उठा दी जैसे देवी काली के हाथ में कर गए और राधा जी बिल्कुल उसके चरण के सामने ऐसे हाथ जोड़ कर बैठे। दरवाजा खोले तो कहां कृष्ण है भाई है। अरे देखो तुम्हारे सती साथी बहू है कुटिला कुट करते हो जटला पटा पकाते हो कुट करने वाले। अरे कहां है वो कृष्ण अरे तुम्हारे बहू जो है देखो देवी के पास आने जैसे तुम्हारे और भी धन संपत्ति बनी। जटला बोले अरे अच्छा चूहा पकड़ गया देखने का कितने सुंदर जावट की लीला है ना गए जावट जाते हैं ना है यही लीला है। कितना सुंदर ये सब प्रभु की लीला है। कितने सुंदर ये लीला कितने हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती एक ग्रंथ ही केवल लिखा है 4 लीला के ऊपर ऐसे सुंदर प्रकट कर दिया। वो ग्रंथ के नाम क्या है चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ। आज मुझे और अभिमन्यु के तो ऐसे पिटाई किया झाड़ू देकर के पिटाई वो भग गया। ये भी लीला हुई है कितने सुंदर है तो लीला इसे कहते पर व्यासिनी नारी व्यग्रोपी गृह कर्मसु है। परकीय भाव की संपन्न जो है गृह कार्य आदि इतने सुंदर करते रहते है। किंतु मैं ये नहीं कह रहा हूं जे आप लोग इसको क्या अनुकरण करें। अनुकरण करना नहीं है मर जाओगे सब आग में जल जाओगे फिर है। हाँ समझे एक साधक और एक सिद्ध साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र तद्भाव लिप्सुना ब्रज लोक अनुसार सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र तद्भाव लिप्सुना ब्रज लोक अनुसार
है। इसमें भाव नहीं, यही नहीं तुम सोचे थे मैं गोपी हूं, मैं भी पर क्या भाव करते रहूं, आप नरक में चले जाओ फिर। ऐसे नहीं है, लीला स्मरण के लिए उन्नत स्तर में जाए तब है। तो ये समझ लीजिए, मतलब ये श्लोक कृष्ण बोले पर व्यासिनी नारी व्याग्र ओपी गृह कर्म, गृह की कार्य करती जाए, सबकी पति से लेकर के ससुर से लेकर के सास से लेकर के सबकी ही सेवा आदि कर रहे हैं, किंतु उसके मन कैसे है? पर यहाँ पर पर माने श्रेष्ठ पुरुष कौन है? भजनंदन में श्याम सुंदर, दूसरी पुरुष नहीं है, है? पर पुरुष करे, पर माने श्रेष्ठ पुरुष कौन है? स्वयं भजनंदन में श्याम सुंदर की स्मरण। गोपियां और कोई पुरुष के प्रति आसक्ति नहीं हुई, आसक्ति किस में? एकमात्र गोविंद है। स्वामी मोर जीवन और स्वामी मोर मरण, आज यही होता है। वो ब्रजवासी के कीर्तन भी है, बहुत सुंदर, इसमें भाव हमें उसी प्रकार नहीं चाहिए है। और नहीं तो तुम सोचे उल्टा करे तो फिर नरकपति हो जाएगा फिर। न इस संसार में सुखम आनुसम, एकमात्र परम पुरुष कौन है? स्वयं भगवान भजनंदन है। ये तो शरीर है हमारे, एक स्त्री का है, पुरुष का एकमात्र चिन्ह मात्र है, चिन्ह मात्र शरीर है, समझ में? बसांगी जिर्नानी यथा यह, ये जो हमारे शरीर क्या है, एक कपड़े के भांति है, उसमें केवल चिन्ह धारण हुआ है। कोई हम कहते स्त्री और कोई कहते पुरुष है, वस्त्र मात्र है बस, किंतु एक दिन वस्त्र उतर जाएगा। आत्म शरीर के जो कार्य, इसलिए कहा जाता है आत्म शरीर के चिंतन करें, आत्मा के लिए आप ध्यान आदि करें, आत्म ध्यान इसलिए लिखा गया है। धीरे 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 जितना भी उन्नत भजन राज्य में जितने उन्नत होते रहेंगे, उतना ही वो आत्म ध्यान में वो प्रतिष्ठित हो जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं? आत्म ध्यान करते रहो, चिंतन करते रहो। पहले हमारे भक्त महाप्रभु भी कहते हैं, ना हंग विप्रो न च नरपति है, ना हंग विप्रो न च नरपति न वैष्णव, ना हंग बरनी न चल। हम क्या है? गोपी भर्तुर पद कमलो दासान दास। कितना सुंदर भाव है। इस भाव के चिंतन करते रहे, धीरे 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 जितना भी चित्त शुद्धि होगा, पवित्र निर्मल होगा, वो निर्मल चित्त पवित्र हृदय में तो आत्मिक स्वरूप की उपलब्धि हो जाए। और जितने भी आत्म स्वरूप की उपलब्धि होगा तब होता है फिर दूसरी स्टेज में जाकर के तब आत्म ध्यान भी होता है, आत्मा के स्वरूप के ध्यान होगा। जिसे भजन रस में लिखा है कि नहीं है? कितना समय तासंग मध्य मनोरमा नाना अलंकार विभूषिता है, अनेक प्रकार अलंकार आदि के द्वारा विभूषित होते है। कितना सुंदर है आत्मध्यान इसमें का है। एक तो महाप्रभु साधन धन के लिए बता दिया, ना हम विप्रो न चरणपति का दिया है, गोपी भर्तु पद कमल उदासान उदास, इतना तक। किंतु सनक संहिता में भजन रस में भक्ति विनोद ठाकुर इसी श्लोक के उद्धृत करके बता रहे, कितना सुंदर उन्नतवान तासंग मध्य मनोरमा। उस समस्त गोपियों में मेरे स्वरूप कैसे है? अत्यंत सुंदर है। मनोरमा मन के जो है भ्रमित करने, पर उनके नाम ही मनोरमा सखी होगा, हो सकते उसमें क्या है? तासंग मध्य मनोरमा नाना अलंकार विभूषिता है। एक अलंकार होता है और एक भाव होता है, दो प्रकार होता है। क्या बोला? एक भाव अलंकार और एक अलंकारिक अलंकार। अलंकार जो कहते हैं अलंकारी अलंकार कहा जाता है। अनेक प्रकार के जो है अलंकार के द्वारा विभूषित होते हैं, इसलिए कहा ये समस्त आत्मध्यान में लिखा है, ये सर्वोत्तम है। हम जो कह रहे हैं ये सर्वोत्तम ध्यान कहा गया है, वस्तु सिद्धि दशा में आ जाता है। कितना सुंदर, पैर से नुपुर से लेकर के गले के हाथ और सिर पर है चूड़ामणि जी को कहते हैं,
है, इसमें सब वर्णन है, उसमें चिंता नहीं किया। जितने साधक जितने भजन करते जाए और धीरे 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 अपने आत्म ध्यान में वो प्रत्यक्ष हो जाता है। ये कहता भजन एक साधने करीबे जहा सिद्धिते पाइबे ताहा केवल मात्र पक्को अपक्को विचार। नतम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में वर्णन करे। साधन काल में जो आप करते जा रहे हो सिद्धि में तो वही तो होगा। एक मैच्योर, एक होता है इमेच्योर। साधक साधन दशा में कहता है इमेच्योर हो जाता है, और सिद्धि दशा में वो परिपक्व हो जाता है। ये कहता है साधने करीबे जहा सिद्धि ते पाइबे ताहा केवल मात्र पक्को अपक्को विचार। आम तो है ही, एक होता है इमेच्योर और एक होता है मैच्योर। आम पक जाता है तब क्या होता है, स्वादिष्ट होता है? और जब नहीं पका आम तो उसको क्या होता है, अच्छा नहीं लगेगा, खट्टा लगेगा है। और जबरदस्ती पका दे तो क्या होगा, ये जितने भी केला आता है ना, वो केला को कैसे करते हैं, सब जबरदस्ती करके पकाते हैं, है कि नहीं है? ये फल, ये फ्रूट मार्केट में जाए सारे कच्चा जो है केला खरीद करके लाते हैं और उसमें क्या डाल देते हैं, हाँ कार्बाइड ने क्या डालते हैं, और इसी बात और भी वो भी नहीं है, उसमें रंग चढ़ा भी देते हैं आजकल लोग पैसा कमाने के लिए ना जाने क्या क्या केमिकल यूज कर देते हैं, जहर खिला देते सब। मर तुम मरना है मरो, तुम हमें क्या, हमें तो पैसा लेना है? बनिया लोग जो पैसा कमाते हैं बोले हमें पैसा के संबंध है? सब्जी खरीदो, सब ताजा ताजा सब्जी, ताजा एक भी नहीं है, सब क्या है खरीद करके उसमें पानी में डाला दे, क्योंकि क्या बोले है कलर जो होता है उसमें डाल दे। हाँ सर, तो उसी प्रकार से पक्को है ऐसे हो जाए। इसलिए भक्ति अंदर प्रभु पाद कहते हैं इचोड़े पका। इचोड़ पका समझते हो कठाल होता है, कठाल होता है ना, भक्ति सिद्धांत पर उदाहरण दे रहे मंगला में। कठाल जो जब मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, वो जब अपने आप जब पेड़ में जब पक जाता है वो अत्यंत स्वादिष्ट सुगंध युक्त होता है। और वही जब कठाल जब छोटा रहता है इमेच्योर अवस्था रहता है, उसके कोई सोचे जो इसको मैं पकाऊं, पकाने के लोग क्या करते जबरदस्ती करके उसमें कुछ केमिकल डाल देते, तो पकता नहीं, वो अंदर में क्या होता है बेकार हो जाता। तात्पर्य क्या है, साधन भजन करते करते अनर्थ निवृत्ति आदि जितनी होती जाएगा धीरे धीरे ये भाव तुम्हारे हृदय में उदित होगा। और साधन भजन किया ही नहीं और जबरदस्ती करके जो है वो भी भाव प्राप्ति करना चाहते हो, कैसे हो जाएगा बताओ? वो सब क्या हो गया, इचड़ ही पका का है। इचड़ समझते कि नहीं, कठाल के जो छोटा जो होता है ना उसके इचड़ का, उसके सब्जी बनाओ है, सब्जी बनाते हैं कि नहीं, बनाना जानते हो कि नहीं, बनाओ सब्जी है, अच्छा लगेगा है। और उसके कोई सोचे रहे मैं इसको मैं पका करके मैं खाऊंगा है, तो उसमें क्या था जबरदस्ती कर बता, वो क्या हो जाता है बेकार हो जाता है। तात्पर्य के साधन भजन करके अनर्थ निवृत्ति आदि होती हुई, जितने अनर्थ निवृत्ति होगा चित्त उतना ही निर्मल होते जाए है, निर्मल तप्त होगा। राम नाम के साबुन से है चित्त के धोई है, राम नाम की साबुन से, कोई राम भक्त करे राम नाम की साबुन से धोई है, राम नाम रूपी साबुन, उसके चित्त के क्या करना पड़े, और निर्मल चित्त में राम के दर्शन होई है, निर्मल दर्पण रूपी चित्त में राम के दर्शन हुई। बहुत सुंदर कीर्तन करते लोग है, राम 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 नाम रूपी साबुन, इसे राम नाम की साबुन से चित्त के धोई है, तब उसे चित्त दर्पण के भांति, उस दर्पण में चित्त रूपी दर्पण में क्या होगा, तब वही राम जी के दर्शन होगा। यही तो बताते यार, और फिर मैं हिंदी में भी बताते रहा है क्या है, तन में मैल लागे तो
धोए जल से, और मन में मैल लागे तो धोए कैसे। समझ में आया क्या बोला? तन में, शरीर में कोई मैल लग गया, धूल लग गया, कीचड़ लग गया, उसका हम क्या करते हैं? जल से धो देते, वो सरल होता है ये कहा जाता है। तन में मैल लागे तो धोए जल से, और मन में मैल लागे तो धोए कैसे। कैसे धोएगा बताओ? मन में यदि हमारा काम क्रोध आदि रहे, ये मैल है, ऐसे मन को धोने कैसे धोएंगे? कहते हैं प्रभु के नाम के द्वारा है। जो कुछ भी काम कर रहे हैं, नाम के द्वारा ही सब कुछ होता है। अंत काल में जितने भी पाठ कर लिया, जितने भी कथा सुनी, अंत में क्या है? वही नाम जप करना है। प्रभु की नाम, नाम ही साधन भी है और नाम भी साध्य भी है। साध्य साधन तत्व सभी नामे तिपाई में। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश में गए, गोपाल रघुनाथ भट्ट के पिता है क्या ना, तपन मिश्र, महाप्रभु के ही प्रश्न पूछा था, ये प्रभु मेरे साध्य और साधन क्या है? तो महाप्रभु ने इतना किया, नाम ही साधन है और नाम ही साधन है, और इससे अधिक कुछ जाना है तो आना मैं बताऊंगा। नाम ही हमारे साधन भी है और नाम ही साधन है। हरि नाम में सब सभी मिले, नाम के द्वारा सब कुछ पाते। नाम साधन भी है और नाम साधन। इसलिए महाप्रभु कोई उपदेश नहीं दिया, 8 श्लोक शिक्षा के 8 श्लोक के दे दिए है। 8 श्लोक, अष्टजाम लीला उसमें है। निशांत से भक्तिवंत ठाकुर देखो कितने इन सीक्वेंस 8 श्लोक में है। और नाम भी है, हरि नाम जो है 16 नाम 32 अक्षर, तो जुगल नाम भी दिखाया है। अष्टयुग, अष्ट जुगल नाम भी कहा, जुगल नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 है। कितना सुंदर वर्णन होता है। नाम ही हमारे साधन है, नाम है हमारी सिद्ध है, नाम ही के द्वारा सब कुछ प्राप्ति हो जाए। किंतु शुद्ध नाम प्राप्ति करने के लिए ये समस्त साधन भी बता रहे हैं। चेतो दर्पणम मार्जनम भव माह दावग निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बोधु जीवनम आनंदम मुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत साधनम सर्व आत्म स्नपनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। नाम संकीर्तन के द्वारा युग और कुछ है ही नहीं, नाम छोड़ करके कुछ है ही नहीं है। अंतिम में तो आपको क्या हुआ है? वही नाम ही जी हमें प्रकट करना पड़ेगा है। श्लोक सब याद भूल जाओगे सब उस समय है। वेदांत सूत्र जितने भी है, वेदांत सूत्र जितने भी याद किया, अंतिम काल में एक भी श्लोक भी नहीं आएगा है। और इसलिए एक ही बात, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसे संग महाप्रभु, नाम ही साधन है और नाम ही साधन, और नाम में सब कुछ, नाम में हरि नाम में सब कुछ है। कृष्ण के नाम कीर्तन करो है। मुख्य नाम और गौण नाम, मुख्य नाम और भी उसमें मुख्य नाम जो है, प्रिंसिपल जो नाम है, उसे कौन सा नाम ग्रहण करे? लीलायुक्त तो माधुर्य नाम का कीर्तन करो है। तन्नाम और उपचरिता आदि सुकृत नानुस्मृतो प्रमना रसना मनस्य निजो तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगान कालं नयत अखिलम इत्तोपदेश सारी है। जितने भी बोल दिए सब कुछ नाम ही है, सब नाम प्रभु है। नाम के द्वारा ही अपने आप स्फूर्ति होगा। किंतु नाम ही इसलिए कहते हैं, नाम के द्वारा चित्त निर्मल होता है, और निर्मल चित्त में तब प्रभु उदित हो जाएगा है। वही समझे कितना सुंदर भाव है। किंतु ये सब कुछ होगा साधु संगम।